Good morning, everyone. Hope you all are doing good and taking good care of yourself. Friends, if you are scared of facing an interview, then this video is for you. In this video, I will be telling you 15 questions which are asked for the pre-primary teachers interview. But before jumping on to questions, let me tell you about the dress code also. Whenever you go for any interview, dress up yourself in a very formal way. गॉडी चीज़ें नहीं पहन के जाएगा. योर मेकअप, योर इयरिंग्स एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी सटल. गॉडी नहीं होना चाहिए. फॉर वुमेन एंड गर्ल्स आई थिंक साड़ी इज प्रेफरेबल, एंड फॉर बॉयज trousers and shirts. Now for the questions. First question usually is self introduction, but yes, before even entering into the room, they notice how do you enter, what is your body posture, your body language. They notice everything. So don't forget your basic etiquettes. Don't enter the room without taking permission. First you have to ask, may I come in? And when they tell you to sit down, then only sit down, not before that. बैठने के बाद they will ask you introduce yourself. So for self introduction, first you give your personal introduction and then your professional introduction. For personal introduction बहुत छोटा सा रखिएगा. First you have to wish everyone good morning everyone. My name is so and so. I am this many years old. I have got two daughters, 22 years and 18 years old. And then what is your husband's name? That is all for the personal introduction. For professional introduction, you go on with the bachelor's degree, and then all the courses you have done for the pre-primary teacher, to be a pre-primary teacher. And then if you have got any teaching experience, mention about teaching experience and what are extra responsibilities you have done during your tenure as a teacher of pre-primary. तो वो सब आपको उसमें बताना होगा. तो दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन. देन कम्स द क्वालिटीज ऑफ अ टीचर. वो पूछते हैं what quality do you have in you to be a प्री प्राइमरी टीचर. क्या आपके में ऐसी क्या क्वालिटी है जो हम आपको लें. या क्वेश्चन घुमा के भी पूछते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ प्री प्राइमरी टीचर, या व्हाट क्वालिटी डू यू हैव इन यू. या फिर ये पूछेंगे कि गिव मी सम एडजेक्टिव्स which describes you. So all questions are one and the same. तो इसमें तो क्वालिटीज़ आपको जो क्वालिटीज़ हों आप बता सकते हैं. समवन इज गुड एट ड्राइंग, पेंटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड समवन हैज़ गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. और जो भी आपके में स्किल्स हैं वो आप पूरा बताएंगे. लेकिन प्री प्राइमरी टीचर के लिए दो तीन जो मेन क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं, एक तो पेशेंस, पैशन, कम्युनिकेशन स्किल, लविंग एंड केयरिंग. ये सारी ये जो चार पांच चीज़ें हैं दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी अ प्री प्राइमरी टीचर. और अधिकतर लोग ये समझते हैं कि टीचर यू हैव टेकन द जॉब ऑफ अ टीचर बिकॉज यू हैड नथिंग एल्स to do. You did not clear any competition, so you have come as a teacher. So you have to make them clear that it is by choice you have taken teaching as a profession, not because you were not able to get any other this thing. तो ये चीज़ें बहुत important होती हैं. Until and unless you have passion in you, then तब तो ठीक है. Otherwise no degree is important if you don't have passion for it. तो do mention about that. देन वो पूछते हैं व्हाट इज़ प्लेवे मेथड. तो प्लेवे मेथड के लिए आई विल नॉट गिव अ फुल डिस्क्रिप्शन बिकॉज वीडियो विल बी टू लॉन्ग. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं देती हूँ आपको, वर्ड्स की वर्ड्स जो आपको बोलने चाहिए. एक तो प्लेवे मेथड as the name itself indicates, it is an activity based teaching where child is the center of education. एंड दूसरी बात, प्लेवे मेथड से प्ले के दौरान हम लोग इसलिए लर्निंग करते हैं क्योंकि प्ले इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ अ चाइल्ड. और प्ले के दौरान ही दे गेट इन्वॉल्व इन द प्ले. और लर्निंग हैपन्स व्हेन द चाइल्ड और एनीवन इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर थिंग. बिना इन्वॉल्वमेंट के तो आप सिर्फ लेक्चर देते जाओगे. तो इन
play, the children are involved in the play, and it is the basic instinct of a child. So we do playway method, and the playway method in this is a play with a purpose, नॉट रैंडम प्ले, बस हम ऐसे खेल नहीं रहे, प्ले के साथ हम कुछ सिखा रहे हैं, तो इट इज़ अ प्ले विद अ पर्पस. तो यू हैव टू मेंशन दीज टू फोर थिंग्स. इट इज़ अ प्ले विद अ पर्पस. इन प्ले वे इट इज़ अ एक्टिविटी बेस्ड, और इसमें प्ले वे मेथड में चिल्ड्रन आर इन्वॉल्वमेंट इन इट एंड इट इज़ अ बेसिक इंस्टिंक्ट. तो इसी के लिए इसमें लर्निंग ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है. एंड टू गिव टू अ edge to your answer, you can also mention about Froebel also, कि Froebel introduced the playway method. उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था, and he coined the term kindergarten, which means kinder means छोटे बच्चों का garden. ठीक है, तो ये you can mention in your playway method answer. दूसरा वो पूछेंगे पिंसर एक्टिविटीज़ या मोटर स्किल्स के बारे में. पिंसर एक्टिविटीज़ आर कंसर्न वेयर दीज टू फिंगर्स आर इन्वॉल्व, जिसमें कि होल्डिंग के लिए हमको जो चाहिए होता है उनको बोलते हैं पिंसर एक्टिविटीज़, वेयर थम एंड योर फोर फिंगर इज इन्वॉल्व, द पॉइंटर फिंगर इज इन्वॉल्व. तो इनको बोलते हैं पिंसर एक्टिविटीज़. अब पिंसर एक्टिविटीज़ के लिए बोलेंगे किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं. टू होल्ड एवरीथिंग, टू मेंटेन बैलेंस, पिंसर एक्टिविटीज़ आर नीडेड. अब पिंसर एक्टिविटीज़ आप कैसे डेवलप करा सकते हो, जो भी फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, अब इसके साथ वो मोटर स्किल्स भी ऐड करना चाहिए. एक तो ग्रॉस मोटर होता है और एक होता है फाइन मोटर. तो फाइन मोटर में आता है पिंसर एक्टिविटीज, जिसमें कि आपको ये तीन फिंगर, जैसे कि पेपर टेयरिंग, ऐसे छोटे 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 टुकड़े करने, इसमें जो फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं वो होता है फाइन मोटर स्किल्स या पिंसर स्किल्स बोलते हैं इसको. फाइन मोटर स्किल्स तो और भी होता है, लेकिन पिंसर में मेनली दीज टू फिंगर्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, तो डू रीड अबाउट फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, और पिंसर में दीज टू फॉर होल्डिंग पर्पस. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज 5 डोमेन्स. व्हाट आर द 5 डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. पहले 5 थे, लेकिन अब 6th भी इंक्लूड कर दिया गया है. मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूड 6 डोमेन्स, पर जो मेन 5 डोमेन्स हैं, दिस आर द फिजिकल डोमेन और फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट. ये आपके हुए 5. एंड 6th इज मॉरल डेवलपमेंट. आजकल मॉरल वैल्यूज़ देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है. जिस तरीके से यू नो सोशल चीज़ें हो रही हैं, तो इसी के लिए नाउ टीचर्स और यू नो द एजुकेशन अथॉरिटीज़ stress on moral education as well. So 6th you can include as a moral development also. What is QCT और QCT क्यों. ठीक है, अब yes, in playway method उसका अगर आप पूछे what are the advantages of playway method, you have to give the same answer कि playway method में children involved होते हैं, उनका basic instinct होता है, और जब तक कि बच्चे involve नहीं होते हैं तब तक कि कुछ सीखना नहीं होता है. तो एडवांटेजेस भी उसके ये होते हैं. अब क्यूसीटी में भी क्यूसीटी क्या होता है और उसके एडवांटेजेस भी वही होते हैं. क्यूसीटी में क्यूसीटी इज़ क्वालिटी सर्कल टाइम. इसमें बच्चों को हम सर्कल में बिठाकर हम खुद बीच में बैठते हैं या उनके सर्कल का पार्ट बनकर बैठते हैं. तो क्यूसीटी क्या होता है. क्यूसीटी में इज क्वालिटी सर्कल टाइम. क्वालिटी सर्कल टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपको सुनते हैं. अब क्यों सुनते हैं. जब आप सर्कल में बैठते हो तो आपका देखिए, जब बच्चे सीधे सीधे बैठते हैं तो आप ऐसे इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे. लेकिन जब आप सर्कल में बैठते हो तो यू कैन हैव यू नो आई कोऑर्डिनेशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड. यू विल मेंटेन दैट आई कोऑर्डिनेशन. हर एक बच्चे का कोऑर्डिनेशन, आई कोऑर्डिनेशन आपके साथ होगा. तो जब आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, दैट हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू दैन यू नो सीधा बैठ के जब डेस्क बेंचेस पे बैठ के बात करते हैं. तो क्यूसीटी क्यों, और ये भी पूछते हैं कि कब होनी चाहिए. एक तो क्यूसीटी कभी भी आप करा सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में करना, हम मतलब माई पर्सनल लिस्टिंग, इफ आई वॉज आस्क्ड अबाउट क्यूसीटी कि कब कराना चाहिए, आई वॉज आस्क्ड बाय अ प्रिंसिपल कि क्यूसीटी कब कराना चाहिए और क्यों. तो आई गिव देम माई व्यू कि आई थिंक इन द मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग में
बच्चों को एक चीज़ के लिए तैयार करना। जैसे हम लोग सवेरे उठते अपने आप को तैयार करते हैं, आज हमको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो चीज़ें स्मूथली चलती जाती हैं। व्हेन यू हैव प्लान्ड, यू हैव बीन टोल्ड कि आपको ये करना है, ये करना है। तो क्यूसिटी के दौरान जब हम मॉर्निंग में करते हैं, वी कैन प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर इट कि आज हम लोग ये करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ये करेंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे, फिर हम लोग स्टोरी बताएंगे हम आपको। तो चिल्ड्रन आर प्रिपेयर्ड कि अच्छा ये हो गया, अब हमको ये करना है, फिर ये करना है। एंड आई ऑल्सो लाइक टू डू एवरी इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग क्यूसिटी। क्यूसिटी में क्योंकि आई टू आई कोऑर्डिनेशन होता है और सब बच्चे सामने बैठे हुए होते हैं, तो उनको समझाना, उनको दिखाना ज़्यादा इजी हो जाता है। फ्लैश कार्ड्स भी अगर आप बोर्ड पर खड़े होकर बना रहे हो या इधर से दिखा रहे हो, इट विल नॉट हैव दैट इम्पैक्ट। लेकिन अब आप क्यूसिटी में गोल में बैठे हुए और सबको हर एक को दिखा रहे हो, उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, हर एक बच्चे को फ्लैश कार्ड पकड़ा रहे हो कि एप्पल, फिर एक बच्चे को पकड़ाया, फिर दूसरा एलिगेटर, उसका फ्लैश कार्ड पकड़ाया। तो आई लाइक टू इंट्रोड्यूस एनीथिंग ड्यूरिंग क्यूसिटीज बिकॉज मेरे को उससे ज़्यादा फ़ायदा लगता है। तो दिस इज़ अबाउट क्यूसिटी। अब सिचुएशनल क्वेश्चन वो लोग बहुत पूछते हैं। जैसे कि मेरे से पूछा गया था कि नर्सरी बच्चा अगर रो रहा है तो आप क्या करोगे। तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि जब नर्सरी बच्चा आता है एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से, जो कभी किधर अपने घर से बाहर अपने मम्मी पापा के बिना नहीं गया, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग किसी दूसरी जगह पर विदाउट देयर पेरेंट्स एंड दे हैव टू स्टे देयर। तो to first of all you have to make them feel comfortable. You will make them sit on the lap, hug them, प्यार से उससे बात करेंगे और उसको बताएंगे कि आप इधर आप उसके लिए हो, जो भी आपको चीज़ बोलनी है, रोने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी देयर, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू। उसको पानी पिलाइए। और अगर फिर भी नहीं मानता है, अब उन्होंने टीचर से पूछा कि ठीक है लेकिन वो रोए जा रहा है, तो आप क्या करोगे। तो आई विल बी टेकिंग चिल्ड्रन टू द पार्क। उधर मैं लेके जाऊंगी बाहर गार्डन में, उनको झूला खिलाऊंगी और झूले पे बिठाऊंगी। झूला क्योंकि प्ले इज देयर फर्स्ट इंस्टिंक्ट और वो खेलने में भूल जाते हैं, तो आई विल गो ओवर देयर। फिर हमसे ये पूछा गया कि अच्छा अगर आप क्लास चल रही है, क्लास के बीच में एक बच्चा रो रहा है, तो आप सारे बच्चों को तो छोड़कर जाओगे नहीं खेलने के लिए, फिर पढ़ाई का क्या होगा। हमने कहा ये इज ट्रू। इसमें आई विल ट्राई टू कंफर्ट द चाइल्ड फर्स्ट, मेक हर और हिम सिट ऑन माई लैप, हग हिम एंड उसको प्यार से समझाएंगे कि बेटा को रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ बैठे हैं। मैं उनको अपनी टेबल चेयर पे बिठाकर उसको लिखाने की कोशिश करूँगी या करने की कोशिश करूँगी, पर जब तक बच्चा चुप नहीं होगा आप नहीं करा सकते हो। तो अगर वो चुप नहीं होता है तब मैं आया दीदी की हेल्प लूँगी और आया दीदी को बोलूँगी कि उसको बाहर जाकर घुमा के आए, एंड आई विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। तो दीज आर द क्वेश्चंस दे विल आस्क यू। और एक बार ये भी पूछा गया था मेरे से कि इफ़ अ चाइल्ड इज चाइल्ड ऑफ थर्ड क्लास इज नॉट एबल टू होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली, सो व्हाट विल यू डू। तो इन सब जो भी ऐसे सिचुएशन होता है, इन सब का पहले ये होता है फर्स्ट आई विल ऑब्जर्व द चाइल्ड। मैं नोटिस करूँगी, देखूँगी कि क्या प्रॉब्लम है उसको। आई विल टॉक टू द चाइल्ड, क्या प्रॉब्लम है। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं और हमें लगता है कि हाँ कुछ है, इसको कुछ प्रॉब्लम है, देन मैं उसकी जो है फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने की एक्सरसाइज कराऊंगी उनको। अगर फाइन मोटर स्किल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आई विल ट्राई टू डेवलप हिज फाइन मोटर स्किल्स। और अगर मैं ये देखूंगी कि फाइन मोटर स्किल्स भी, सिंस आई अज्यूम द चाइल्ड इज इन थर्ड स्टैंडर्ड एंड जब दूसरी एक्टिविटीज़ ठीक है तो उसका ग्रॉस फाइन मोटर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट मीन्स ही इज होल्डिंग द पेंसिल इन अ रॉन्ग वे। तो आई विल टीच हिम और हर द राइट वे ऑफ यूजिंग दीज 3 फिंगर्स, कि पेंसिल को कैसे होल्ड किया जाए। तो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशनल क्वेश्चंस दे गिव यू। और जो क्वेश्चन जो पैनल ऐसे बैठा हुआ होता है, सेमी सर्कल में बैठे हुए होते हैं लोग, तो जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो भी एग्जामिनर पूछे, आप उसको देख कर जवाब देंगे। ये नहीं कि आप नीचे देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं क्या, आप सीधा उनको देख कर जवाब देंगे। फिर 8th आता है फोनेटिक्स।
तो सिचुएशनल क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकते हैं कि आप पढ़ा के दिखाइए। दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सच अ क्वेश्चन, चाहे वो बोले पोएम रिसाइट करके दिखाओ, या वो ये भी बोल सकते हैं कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ ए कैसे करेंगे या इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर कैसे करेंगे। तो माई रिक्वेस्ट इज प्लीज़ डोंट गो डायरेक्टली ऑन टू द बोर्ड। पहली बात तो वो लोग कुछ ना कुछ प्रॉप्स रखते हैं, यूज़ दैट प्रॉप्स। वो प्रॉप्स रखे ही इसी के लिए होते हैं, और अगर नहीं भी रखे हुए होते हैं तो आप अपने साथ अपना एक प्रॉप कैरी कर सकते हैं। आपने पिछले हमारे अगर वीडियोस देखे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि मोजी से मैंने एक पपेट ऐसे बनाया हुआ, दैट इज़ वेरी इजी टू मेक। यूट्यूब पे काफ़ी सारे पपेट्स, हैंड पपेट, सॉक्स पपेट दे रखे हैं। यू कैन कैरी वन पपेट विथ यू। और कभी भी बैठ के तो नहीं पढ़ाइएगा, हमेशा खड़े होकर पढ़ाना होता है। ये नहीं कि आप बैठ के एक्सप्लेन कर रहे हैं और डायरेक्ट किसी भी चीज़ पे नहीं जाएंगे। ए, आज टुडे वी विल बी लर्निंग ए, दिस इज़ ए। पहले उसकी भूमिका बांधनी पड़ती है, उसको एक स्टोरी बतानी पड़ती है, फिर हम आगे कुछ शुरू करते हैं। अब जैसे हमको बोला गया था पोएम रिसाइट करने के लिए, तो पोएम रिसाइट करने के लिए आई स्टूड अप, आई टुक वन ऑफ द पपेट एंड हाथ में पपेट लेके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन, एंड टुडे बच्चों आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग सम पोएम, will you like to hear a poem, recite a poem with me? Yes. Then फिर voice modulation is very very necessary. You can say one of the qualities of a teacher also, voice modulation, because it is very necessary for pre-primary teachers. वॉइस मॉड्यूलेशन करके ही बोलिएगा, और वैसे ही पोएम बोलिएगा। तो जैसे मैंने गुड मॉर्निंग वगैरह, दे वर इम्प्रेस्ड एंड दे सेड कि यस वी हैव गॉट इट। अब आप हमको ग्रेटर और लेसर बताइए आप कैसे करेंगे। तो कभी भी मुंह से एक्सप्लेन करने की बजाय उधर जो भी चीज़ें रखी हो आमने सामने, उसको यूज़ करने की कोशिश करिए। तो जैसे जो भी जजेस बैठे थे उनके पास पेन्स थे, उनके बास्केट थी, उनके में पेन्स रखे हुए थे। तो मैंने पूछा, फर्स्ट यू हैव टू टेक परमिशन, मे आई मैम, मे आई टेक द पेन्स प्लीज़? बोला कि यस। तो सबके उसमें मैंने बोला कि एक डेस्क पे 2 जने बैठे हुए होते हैं, तो बोला कि ये आपका है, ये आपका है, अब आप गिनो कितने हैं और आप गिनो कितने हैं। एक के 3, एक के 4, ऐसे ही मैंने सारे जजेस को उनका पेन दिए। हमने वो बोला कि अगर मेरे पास टॉफ़ीज़ होंगी तो आई विल सर्टनली गिव टॉफ़ीज़ टू देम, बिकॉज टॉफ़ीज़ से बच्चे खुश हो जाते हैं एंड दे विल अंडरस्टैंड दैट मोर बेटर। तो आपके पास किसके पास पेन ज़्यादा है? इसके पास है। तो ये मेरा क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल कौन से खाएगा? उसको कितनी सारी टॉफ़ी चाहिए? ज़्यादा वाले खाएंगे कि कम वाले खाएंगे? बट नेचुरल है, ज़्यादा वाले खाएंगे हम। तो उसने मुंह ऐसे खोला, तो मुंह क्रोकोडाइल किसकी ओर खोलेगा? जिसमें ज़्यादा होगा, और उसको हमने खा लिया। तो ऐसे ग्रेटर और लेसर मैंने समझाया था। और जैसे ए का इंट्रोडक्शन बोलते हैं, तो अगर मेरे को बोला जाए ए का इंट्रोडक्शन, तो आई विल से, कम ऑन चिल्ड्रन, लेट अस क्यूसिटी टाइम, लेट अस सिट इन अ सर्कल, लेट अस मेक अ सर्कल। सर्कल में बैठ के देन आई विल इंट्रोड्यूस विद द स्टोरी, विद द फ्लैश कार्ड्स, विद एवरीथिंग। नेवर गो विदाउट द फ्लैश कार्ड्स। डोंट से कि हम ऐसी स्टोरी बता रहे हैं कर या स्टोरी में वॉइस मॉड्यूलेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लैश कार्ड्स होने ज़रूरी हैं, कुछ प्रॉप्स होना ज़रूरी है। तो लर्निंग जो भी ऐसे सिचुएशंस आपको देते हैं उसमें ये ज़रूर बोलिएगा कि आप प्रॉप्स यूज़ करेंगे। ये एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नर्सरी में जैसे कि बच्चे आते हैं, जो सिचुएशन वो पूछते हैं, उसमें ये लाइन ज़रूर वो होनी चाहिए कि सिंस नर्सरी किड्स या प्री प्राइमरी किड्स कम फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट एंड दे लुक फॉर the comfort and love and care which they get at home. So as a teacher, it is my duty and I will duty and responsibility to give them that care and love, so that they are comfortable in the school, and that will make them happy and willing to sit in the class at least. That is more important कि बच्चा जब बैठेगा तभी तो कुछ करेगा. So this was one of the situation questions which they do ask. ज़रूर कुछ ना कुछ आपको एक चीज़ पढ़ाने के लिए बोलेंगे.
तो रिमेंबर दिस, डोंट गो टू द बोर्ड डायरेक्टली। फर्स्ट आप उसको स्टोरी सुनाएंगे, प्रॉप्स के साथ उसको समझाएंगे, उसके बाद आप बोर्ड पर जाएंगे और बोर्ड पर फर्स्ट यू हैव टू राइट डे, डेट, बीच में टॉपिक, और ये सब भी देखते हैं कि आप बोर्ड कैसे लिखते हो। ये भी बोल सकते हैं हाउ डू यू राइट द बोर्ड। तो ये भी एक वन ऑफ द क्वेश्चंस है। दिस इज द सिचुएशन क्वेश्चंस। बारे में बहुत पूछा जाता है, वाई फोनिक्स, फोनिक्स, और बीच बीच में साउंड उठा के पूछ लेते हैं। तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन फोनिक्स, एवरीथिंग अबाउट फोनिक्स शॉर्टली। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। फोनिक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्यों फोनिक्स पढ़ाना चाहिए हमको फोनिक्स। द आंसर टू इट विल बी बिकॉज फोनिक्स हेल्प अस टू रीड थिंग्स, टू राइट थिंग्स। फोनिक्स के साउंड होने से वी कैन राइट स्पेलिंग्स ऑल्सो विदाउट इवन नोइंग द वर्ड। फोनिक्स के बारे में ये ज़रूर पूछते हैं। और कोई किसी न किसी, स्पेशली जो बड़े ट्रिकी शब्द होते हैं, जो बड़े ट्रिकी लेटर्स होते हैं, जिनकी जैसे एफ की साउंड लोग फ बोलते हैं, फ नहीं होता है, तो ये ट्रिकी फोनिक्स ज़रूर पूछते हैं कुछ ना कुछ। दूसरा वो पूछेंगे कि हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू द स्कूल। कंट्रीब्यूटर्स स्कूल में आपको आपकी सारी क्वालिटीज़ जो आपके में है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो सब करूँगी। एंड ऑल्सो आई नो दैट कि स्कूल में कभी कभी ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आई विल बी रेडी फॉर इट। एनुअल फंक्शन वगैरह में अपना आइडियाज़ मैं दूंगी। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ बीइंग गिवन टू मी। और जैसे किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स है तो ही और शी कैन से कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई विल लाइक टू डू एमसी। और किसी के पास क्रिएटिव स्किल्स है तो आई विल पार्टिसिपेट इन द मेकिंग द बैकड्रॉप एंड एवरीथिंग। With all these things, you will accept all the responsibilities given to you. You will be punctual, and you will be ready to stay back if the school needs. ठीक है, तो this is how you will contribute. Competition क्या नहीं पूछते हैं, what do you think there should be competition for pre-primary kids or not? अब it depends upon the perception. कंपटीशन देखिए आजकल दो तरीके से होते हैं। मैं ये बोलती हूँ कि कंपटीशन में एक तो प्री प्राइमरी चिल्ड्रन दे डोंट नो अबाउट द वर्ड कंपटीशन। ये तो पेरेंट्स हैं जो फोर्स करते जाते हैं कि आपको फर्स्ट आना है, ये करना है, वो करना है। तो बच्चों को पता ही नहीं है जिस चीज़ के बारे में, तो उसका, और फिर उसके बाद जब दूसरों को गिफ्ट मिलता है या दूसरों को सर्टिफिकेट मिलता है तो वो बच्चा, दूसरे बच्चे परेशान हो जाता है। ये तो हुआ इसका नेगेटिव पॉइंट। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स आजकल कुछ ज़्यादा हमें लगता है, दिस इज़ माय परसेप्शन, आजकल वर्ल्ड पूरा कंपटीशन का है। और आजकल देखिए कितने सुसाइड्स वगैरह इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू टेक द फेलियर। तो शुरू से ही उनको दिखाना चाहिए कि कंपटीशन ठीक है, लेकिन कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं। तो शुरू से ही ये आदत डालनी चाहिए कि इट इज़ नॉट द लाइफ थ्रेटनिंग और लाइफ एंडिंग सिचुएशन। लेकिन कंपटीशन में एक ये भी है, कंपटीशन में पेरेंट्स और बच्चा दोनों बहुत एफर्ट्स डालते हैं जिससे उनकी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। दे लर्न मैनी थिंग्स। इवन पेरेंट्स भी काफ़ी एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चा कुछ सीखता ही है उससे। तो दिस आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ कॉम्पिटिशन। डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ कैन यू कन्विंस द जज। जिससे आप जिस चीज़ को कन्विंस कर सकते हो आप वही पॉइंट बोलिएगा। उसके बाद अभी क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत यूज़र है, पहले ये पूछा गया था कि स्मार्ट बोर्ड्स और ये सब, डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी विद द मोबाइल्स कमिंग अप, दे चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है? पहले भी तो पढ़ाई ऐसे होती थी, करते थे हम लोग। लेकिन आजकल देखिए, आजकल वही टेक्नोलॉजी काम में आ रही है। नोबडी नोज कि क्या सिचुएशन कल आए, तो वी शुड बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। सो आई थिंक वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. Technology is must to have nowadays. So you can focus upon this pandemic year and prove your point of including technology.
अब जो न्यू टीचर्स होती हैं, न्यू टीचर्स के बारे में बोलते हैं कि यू आर न्यू टू दिस। अब बहुत सारी मेरे पास एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो मैं आपको क्यों लूँ? तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए, हमेशा जब भी आप रियल लाइफ सिचुएशंस देते हो ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हो, इट वर्क्स। अब आप ये दे सकते हो कि अमेज़ॉन पे जब भी हम लोग चीज़ें खरीदते हैं तो हम लोग उसकी रेटिंग देख के खरीदते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो रेटिंग, अच्छी रेटिंग वाली चीज़ें हम मंगाते हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, और जो नई चीज़ें होती हैं जिसकी एक भी रेटिंग नहीं दी हुई होती है वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। तो आई थिंक आई विल प्रूव टू बी अ गुड टीचर। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हो कि ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात कि न्यू आइडियाज़ आर ऑलवेज वेलकम। आई विल बी विद द न्यू आइडियाज़ ऑल्सो, आई विल गिव न्यू आइडियाज़। और अगर सचिन तेंदुलकर को भी चांस नहीं मिला होता तो क्या आज वो इस पोजीशन पे होता? एवरीवन नीड्स अ चांस। तो जब तक कि आप वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कि आपको कैसे पता पड़ेगा? तो आप ये चीज़ें आप बोल सकते हैं विच विल टेक यू अहेड। अब एनपीई के बारे में पढ़ लीजिएगा, बिकॉज विद द न्यू एनपीई कमिंग अप they might ask questions on NPE. And the last question is ECCE और ECE में क्या डिफरेंस होता है? ECC is early childhood care education and EC is early child education. अब ECCE में फ़र्क ये होता है, ECCE अबाउट प्री प्राइमरी एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, दैट इज़ यूज फॉर प्री प्राइमरी, और ECE इज़ यूज फॉर प्राइमरी किड्स। तो डू रीड अबाउट ECCE एंड ECE। वैसे ज़्यादा पूछते नहीं है, दे माइट आस्क यू डिफरेंस इन दीज टू, एंड दे माइट आस्क यू डिफरेंस इन मॉन्टेसरी एंड प्लेवे मेथड ऑल्सो। सो इन प्लेवे मेथड में क्या होता है, प्लेवे में टीचर इन्वॉल्व होती है, लेकिन मॉन्टेसरी में टीचर इन्वॉल्व नहीं होती है। एंड मॉन्टेसरी का हर जो भी प्लेवे मेथड होता है, एक इक्विपमेंट होता है, वो इक्विपमेंट को, जो टॉय होता है वो लोग टॉय को इक्विपमेंट बोलते हैं, और उस इक्विपमेंट से वो सिखाते हैं। तो इट इज़ मोर ऑफ एकेडमिक्स rather than a playing. So these are the difference between playway method and Montessori method. I hope you will be benefited by this video. All the best for you, and bye bye.